تصور کریں ایک ایسے لرزہ خیز دن کا جب قدرت کے قہر نے زمین کے سینے کو چیر کر رکھ دیا۔ ایک ایسا لرزہ خیز طوفان جس نے دنیا کی بلند ترین عمارتوں اور غرور سے سینہ تانے عظیم پہاڑوں کو اپنے اندر نگل لیا۔ پانی کی ان بے رحم موجوں کے سامنے ہر شے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ زمین پر بسنے والی پوری نافرمان آبادی ختم ہو چکی تھی۔ ہر طرف صرف موت، تباہی اور وحشت کا راج تھا۔ لیکن ان بپھری ہوئی اور خوفناک موجوں کے عین اوپر ایک واحد کشتی تیر رہی تھی۔ اس کشتی میں چند خوش نصیب سوار تھے جنہوں نے بعد میں اس ویران زمین کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو مٹنے سے بچا لیا۔ یہ کشتی کس کی تھی اور وہ کون لوگ تھے جو اس ہولناک آفت سے نجات پا گئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ مشتاق۔ آج کی اس سنسنی خیز دستاویزی رپورٹ میں ہم ہزاروں سال قبل آنے والے تاریخ انسانی کے اس سب سے بڑے طوفان یعنی طوفان نوح کے وہ راز بے نقاب کریں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ ہم کھوج لگائیں گے اس دور کا جب انسانیت نے نفسیاتی انحراف، زنا، فحاشی اور سرکشی کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ ہم جانیں گے کہ کیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نیک لوگوں وت، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی محبت کو شیطان نے گمراہی میں بدلا اور کیسے ان کی یادگاروں نے بتوں کی شکل اختیار کی جس سے زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا شرک پیدا ہوا۔ اور پھر شرک اور اندھیروں کے اس گھٹا ٹوپ دور میں ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت ہوئی جسے تاریخ انسانیت کا دوسرا باب کہا جاتا ہے، جن کا اصل نام سکن یا عبد الغفار تھا، لیکن اپنی قوم کے انجام کے خوف سے اس قدر گریہ زاری کی کہ دنیا انہیں نوح کے نام سے جاننے لگی۔ ایک نبی کی صدیوں پر محیط تن تنہا جد و جہد اور پھر وہ عذاب الہی جس نے سب کچھ مٹا دیا۔ دل تھام کر بیٹھیے گا کیونکہ آج کی یہ داستان آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد جن کا تعلق براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کی پاکیزہ نسل سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اول والعزم پیغمبر، شرک کے خلاف پہلے عظیم مبلغ اور پہلے رسول جنہیں ایک عالمی یا وسیع علاقائی عذاب سے گزارا گیا۔ قوم نوح کا زوال اچانک یا کسی ایک رات کا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ صدیوں پر محیط اخلاقی، سماجی اور روحانی انحطاط کا نتیجہ تھا۔ تاریخی دستاویزات اور اسلامی روایات واضح کرتی ہیں کہ قوم نوح وہ پہلی قوم تھی جس نے زمین پر بت پرستی کی ابتدا کی۔ انہوں نے اپنے نیک اور گزرے ہوئے بزرگوں کی عقیدت میں ان کے مجسمے بنائے جن میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر شامل تھے۔ ابتدائی طور پر یہ مجسمے محض یادگار کے طور پر بنائے گئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگلی نسلوں نے انہی مجسموں کی باقاعدہ پوجا شروع کر دی۔ شرک کے اس ناسور کے ساتھ ساتھ اس قوم میں اخلاقی گراوٹ اپنے بھیانک ترین عروج پر تھی کہ قوم نوح نے فحاشی، زناکاری اور بدکاری کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا۔ سماجی سطح پر امیر اور طاقتور طبقے نے غریبوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا اور اخلاقی بے راہ روی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ رشتوں کا تقدس اور روحانی اقدار کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھانا چاہا تو ان امیر اور متکبر سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا اور سرکشی اختیار کی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک عام انسان کس طرح نبی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کو حقیر، کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ قرار دیا۔ یہ تکبر، زنا کی کثرت اور اللہ کی ذات میں شراکت داری وہ سنگین جرائم تھے جنہوں نے اس قوم کے مقدر میں ایک لرزہ خیز تباہی لکھ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا عرصہ 950 سال پر محیط تھا، جو کہ انسانی تاریخ کا ایک بے مثال اور طویل ترین واقعہ ہے۔ اس طویل مدت میں انہوں نے اپنی قوم کو دن رات خفیہ اور اعلانیہ، انفرادی اور اجتماعی ہر ممکن طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ قوم کا رویہ اس قدر ظالمانہ اور سفاکانہ تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں ہدایت کی طرف بلاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز نہ سن سکیں، اور اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ انہیں دیکھنا بھی نہ پڑے۔ بات صرف زبانی مخالفت تک محدود نہ رہی بلکہ قوم کے لوگ ان پر اس قدر وحشیانہ تشدد کرتے کہ بس اوقات انہیں
लहो लहान करके मिट्टी और पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दिया जाता, ये समझकर कि वो मर चुके हैं। लेकिन अल्लाह के ये अव्वल वल अज़्म नबी अगली सुबह फिर से उठते, अपने जख्म धोते और वही तबलीगी फरीजा दोबारा अंजाम देना शुरू कर देते। तारीख में किसी और पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तवील जिस्मानी और ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं की जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की। सदियों पर मुहीत इस अजीम जिद्दोजहद के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद निहायत कलील रही। रिवायात के मुताबिक उनके साथ कश्ती में सवार होने वालों की कुल तादाद महज 10 या ज्यादा से ज्यादा इसी अफराद पर मुश्तमिल थी। कौम का अंधापन इस नहज पर पहुंच चुका था कि जब नए बच्चे पैदा होते तो वालिदैन मरते वक्त उन्हें बाकायदा वसीयत करते कि इस पागल शख्स नाउजुबिल्लाह की बात हरगिज मत सुनना और इसकी मुखालिफत जारी रखना। बिल आखिर जब मुसलसल 950 साल की जिद्दोजहद के बाद अल्लाह की तरफ से वही आई कि आइंदा इस कौम में से कोई मजीद ईमान नहीं लाएगा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस जालिम और जानी कौम के लिए जमीन पर से उनके मुकम्मल खात्मे की बद्दुआ की। जब हिदायत के तमाम रास्ते बंद हो गए और कौम पर अजाब का फैसला सादिर हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीम शान कश्ती बनाने का हुक्म दिया जो बराह रास्त इलाही निगरानी और वही की रोशनी में बनाई जानी थी। इस कश्ती की तामीर का अमल खुद एक अजीम और सनसनी खेज वाकया है। एक खुश्क और सहराई इलाके में जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था, एक देवाहेकल कश्ती की तामीर ने कौम के तमस्खुर को मजीद बढ़ा दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे होते तो कौम के मुतकब्बिर सरदार वहाँ से गुजरते और कहतहे लगाते कि क्या अब तुम नबी से बढ़ई बन गए हो और यहाँ रेत पर कश्ती कैसे चलाओगे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब इंतहाई पर एतमाद और खौफनाक अंजाम की खबर देने वाला होता कि आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम्हारे दर्दनाक अंजाम पर हंसेंगे। कश्ती की 3 मंजिलें थीं। निचला हिस्सा दरिंदों और जानवरों के लिए, दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए और सबसे ऊपर का हिस्सा परिंदों के लिए मुख्तस था। कश्ती में 3 दरवाजे एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे और हवा की आमदो रफ्त के लिए खिड़कियां मौजूद थीं। तारीखी रिवायात के मुताबिक कश्ती के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जसद खाकी भी रखा गया था ताकि मुर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा या हद कायम रहे। इस दौरान मंतकी तौर पर जानवरों का जमा होना एक मोजिजा था। अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में सवार किया गया। इस तवील सफर के लिए कश्ती के अंदरूनी माहौल को मुतवाजिन रखने के लिए हैरत अंगेज माफौकुल फितरत वाकयात पेश आए। एक दिलचस्प और मुस्तनद रिवायत के मुताबिक जब कश्ती में चूहों की कसरत की वजह से गंदगी और परेशानी हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह के हुक्म से शेर ने छींक मारी जिससे बिल्ली पैदा हुई जिसने चूहों पर काबू पाया। इसी तरह जब जानवरों का फुजला बढ़ गया तो हाथी के छींकने से सूर की पैदाइश हुई ताकि वो इस फुजले को साफ कर सके और कश्ती का माहौल मुताअफ्फिन होने से बच जाए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक जंगली गधे को सवार कर रहे थे तो वो रुक गया क्योंकि शैतान उसकी टांगों के दरमियान छुपा हुआ था, जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेध्यानी में कहा, ए शैतान दाखिल हो जा, और यूं इब्लीस भी छुपकर इस सफर का हिस्सा बना। तूफान के आगाज की निशानी एक तंदूर का उबलना थी जो कि एक इंतहाई गैर मामूली बात है कि जिस जगह से आग निकलती है वहाँ से पानी के चश्मे फूट पड़े। जब जमीन ने अपने सीने से पानी अगलना शुरू किया तो आसमान के दरवाजे भी मूसलाधार बारिश के लिए खोल दिए गए। जमीन और आसमान का पानी इस कदर शिद्दत से मिला कि एक ऐसा खौफनाक और लर्जाखेज तूफान बरपा हुआ जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में इससे पहले या बाद में कभी नहीं मिलती। ये तूफान महज एक आम सैलाब नहीं था। तहकीकी दस्तावेजात और पुरानी हकायक बताते हैं कि पानी की लहरें देवाहेकल पहाड़ों की मानिंद ऊंची और बिफरी हुई थीं। अजाबे इलाही ने उन तमाम अफराद को अपनी लपेट में ले लिया जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया था, जिनमें शिर्क करने वाले, गरीबों का हक मारने वाले, अमीर सरदार और जिनाकारी में मुब्तला बेहया अफराद शामिल थे। जमीन के हर कोने से पानी इस कदर तेजी से बुलंद हुआ कि किसी भी इंसान या जानवर को भागने
या पनाह लेने की मोहलत न मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने सगे बेटे कनआन, जिसे याम भी कहा जाता है, बदी दलील है कि खानदानी और खूनी ताल्लुकात उस वक्त तक कोई फायदा नहीं देते जब तक ईमान और नजरिए का रिश्ता मजबूत ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम बाज रिवायात में व अहलहा या नामा बताया गया है, ईमान नहीं लाई थी और उसने खुफिया तौर पर कुफ्फार का साथ दिया था। वो लोगों को बताती थी कि उसका शौहर नाउजुबिल्लाह मजनून हो गया है। नतीजे में वो भी गर्क होने वालों की फहरिस्त में शामिल हुई। दूसरी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनआन कुफ्र और सरकशी पर कायम था। जब पानी की लहरें हर चीज को निगल रही थीं और तूफान अपने जौबन पर था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहैसियत एक बाप के मुमता और तड़प के साथ अपने डूबते हुए बेटे को आखिरी बार पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत रहे। लेकिन इस मुतकब्बिर बेटे का घमंड देखिए। पानी उसके कदमों को चूम रहा था, मगर उसने पूरे गुरूर से जवाब दिया, मैं अभी किसी ऐसे पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेबसी और दर्दमंदी से फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। एक बाप और बेटे के दरमियान होने वाली इस जज्बाती और आखिरी गुफ्तगू के फौरन बाद एक अजीमुल जुस्सा लहर आई और उसने कनआन को हमेशा के लिए गर्क कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुख भरे दिल के साथ अल्लाह से अर्ज की कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल खानदान में से था और तेरा वादा सच्चा है, जिस पर अल्लाह ताला ने कायनात का एक अबदी उसूल वाज़ेह करते हुए फरमाया कि ऐ नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके आमाल गैर साले थे। ये दिलखराश वाकया इस अम्र की कतई दलील है कि अल्लाह की बारगाह में खूनी रिश्तों से ज्यादा ईमान और आमाल की अहमियत है। नबी का बेटा होना भी उसे अल्लाह के अजाब से ना बचा सका। तूफान नूह ने पूरी दुनिया या उस मखसूस खित्ते की तमाम आबादी को, जिस पर तारीख दानों और मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर शवाहिद आलमी तूफान की तरफ इशारा करते हैं, को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम कुफ्फार, जानी और मुशरिकीन हलाक कर दिए गए। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से जमीन ने अपना पानी निगल लिया और आसमान ने बारिश रोक दी। तारीखी हकायक के मुताबिक ये कश्ती 6 माह और 8 दिन तक लामहदूद पानियों पर तैरती रही और बिल आखिर 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन कोहे जूदी पर जाकर ठहर गई। कोहे जूदी जुनूब मशरकी तुर्किया में वाक़े है और इस पहाड़ी के इर्द गिर्द आज भी इस अजीम जहाज के बाकियात और निशानियां दरियाफ्त की जा चुकी हैं। मशहूर जरीदे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर और चीनी माहिरीन की टीमों ने ऐसी बाकियात दरियाफ्त की हैं जिनकी उम्र कम से कम 4800 साल कब्ल मसीह तय शुदा है और जिनकी पैमाइश और बनावट बिल्कुल कश्ती नूह के कुरानी व तारीखी बयानात के मुताबिक है। जब पानी मुकम्मल तौर पर उतर गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले अमन व सलामती के साथ जमीन पर उतरे। उन्होंने वहां एक नया शहर आबाद किया जिसे करीनहे समानीन या समानीन यानी इसी अफराद का शहर कहा जाता है और वहां शुक्राने के तौर पर एक मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद सिमानी के नाम से जाना जाता है। जिंदगी की नई इब्तिदा और इंसानियत की दोबारा तख्लीक। तूफान के बाद ये कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा था कि कश्ती में सवार दीगर तमाम ईमान लाने वाले मर्दों और औरतों की नस्ल आगे नहीं बढ़ी सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों के। इस वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत का दूसरा बाप कहा जाता है क्योंकि आज दुनिया में मौजूद तमाम इंसान उन्हीं 3 बेटों की नस्ल से हैं। जिस्मानी खुदू खाल साम, अरब, यहूदी, बनी इसराइल और मशरक़ वुस्ता की अक़वाम उनकी नस्ल से हैं। उन्हें अरबों का बाप कहा जाता है। उनकी नस्ल ज्यादातर गंदुमी और सफेद रंगत पर मुश्तमिल थी। हाम, हबशा, अफ्रीका के बाशिंदे और दीगर सियाह फाम नस्लें उनसे वजूद में आईं। ये सियाह फाम और गहरी रंगत वाले लोगों के जद्दे अमजद हैं। याफिस, तुर्क, रूसी, मंगोल और एशिया के दीगर कबाइल की नस्ल
नस्ल उनसे शुरू हुई। उनकी नस्ल के लोगों का रंग सुर्ख और जर्दी माइल था। ये तीनों बेटे इंसानी तारीख के नए मैमार साबित हुए और आज की जदीद दुनिया की बुनियाद उन्हीं की नस्लों से जुड़ी है। तूफान खत्म होने और जमीन पर दोबारा जिंदगी के आसार मुस्तहकम होने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम मजीद 350 साल तक जिंदा रहे। उनकी कुल उम्र के हवाले से तारीख दानों में खासा इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक उन्होंने 1050 साल उम्र पाई, जबकि बाज दीगर इस्लामी रिवायात उनकी कुल उम्र 2500 साल तक बयान करती हैं, जिसमें अजाब से पहले का वक्त, तबलीग के 950 साल और तूफान के बाद की जिंदगी शामिल है। ताहम कुरान और अहादीस से जो बात कतई तौर पर साबित है वो उनकी 950 साला सब्र आजमा तबलीगी जद्दोजहद है। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो मौत की आहट सुनकर उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया और उन्हें एक अजीम वसीयत की। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें 2 चीजों का हुक्म देता हूँ और 2 चीजों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमेशा अल्लाह की वहदानियत पर कायम रहना, क्योंकि अगर 7 आसमान और जमीनें तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में, तो ये कलमा भारी होगा। और मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से सख्ती से मना करता हूँ। उनकी वफात के बाद उनके मदफन के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकी और तारीखी रिवायात मौजूद हैं। दुनिया भर में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ उनका मजार होने का मुस्तहकम दावा किया जाता है, जो उनकी आलमगीर हैसियत को जाहिर करता है। उर्दुन, यहाँ एक मकबरा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो मुसलमानों के लिए अजीम रूहानी मरकज है। एक सब्ज चादर से ढका ये मजार दुनिया भर के जायरीन की तवज्जो का मरकज है। बाज रिवायात के मुताबिक उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब ही नजफ में दफन किया गया। बाज पदीन इस्लामी रिवायात के मुताबिक उनकी कब्र मक्का मुकर्रमा के मुकद्दस इहाते में वाक़े है। एक कदीम मजार जिसे मकामी रिवायात हजरत नूह का मदफन मानती हैं। मस्जिद नबी नूह के सहन में जजरा के मकाम पर और लुबनान में भी उनके मजारात मंसूब हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गहराई से गौर किया है कि ऐसी अजीम, ताकतवर और बज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर कौम का नाम और निशान क्यों मिटा दिया गया? कौम नूह की हलाकत किसी आम कुदरती आफत या मौसमियाती तब्दीली का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उनके मुसलसल शिर्क, जिनाकारी, तकब्बुर और अपने नबी के मजनूनाना मजाक उड़ाने का बराह रास्त और हतमी नतीजा था। इस तारीखी हकीकत का इदराक करना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि मादी ताकत, दौलत और सरमाए का गुरूर अज़ाबे इलाही के सामने रेत की दीवार से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कनआन का होमोलनाक अंजाम इस अमर पर मुहरे तस्दीक सब्त करता है कि दीन हक की बुनियाद खून के रिश्तों पर नहीं, बल्कि अकीदे, आमाल और ईमान की सच्चाई पर उस्तवार है। एक नबी का 950 साल तक नाकाबिले तसव्वुर तकालीफ बर्दाश्त करना इस बात की रोशन दलील है कि हक का रास्ता इस्तिकामत मांगता है। जदीद दौर के इंसान को भी उन्हीं अखलाकी और रूहानी बीमारियों का सामना है जिनमें कौम नूह मुब्तला थी। ये दास्तान महज एक कहानी नहीं, बल्कि आने वाली हर नस्ल के लिए एक जिंदा वार्निंग है। आइए जानते हैं और सीखते हैं उन तारीखी और कुरानी वाकयात से, ताकि हम उन तबाह कुन गलतियों को दोहराने से बच सकें जिन्होंने माजी की अजीम तहजीबों को पानी के एक रेले में गर्क कर दिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू और तारीख के मजीद सनसनीखेज हकायक के साथ। अल्लाह हाफिज।